Query session searching top quality companies. This was the discussion with students who were trying to search top quality companies from growing industries. So before you take any action, go thoroughly. Do not buy or sell before reading any material on yourself. Stocks discussed today may or may not be in the holding of students or teachers. Right? This discussion is classified into three parts. Today we are uploading part 1, part 2 and part 3 will be uploaded consequently. Thank you. Let us start our meeting. This conference will now be recorded. Friends, during last chapter, we all have learned how to analyze growing industries. And see, you all have created a wonderful list by your own. That was a wonderful thing. Now, the list which you have written in your spreadsheet, this might be wrong, might be right. There might be some error. Why? Because this list have been created by several different team players, and maybe they would have taken standalone results instead of consolidated result. So it is possible there might be some error, but it's all right. All errors will be rectified as we will move further. First of all, I will like to talk with Ahmed Bhai. Ahmed Bhai, are you online right now? Just let me check. Okay. I think Ahmed Bhai is not right now online. He have sent a wonderful list by working each and every industry. I hope that you all have received that list. So see, this is the thing what wealth creators do. They do not depend on each other. They just create on their own. Ahmed Bhai list was really wonderful one. He has worked on each and every industry, and now he know that which are growing industries and which are decaying industries. There may be some error. There may be that he has not considered consolidated. So now it's all right. It will take another 4 to 5 days, right? Just to check, because all the companies do not have consolidated result. Just 25% industries or 25% companies are having consolidated result. So I hope Ahmed Bhai will complete his whole list, and this is the way we all are going to move forward. We must know which industries are growing, where there is demand. See, where people are spending money, that's the demanding industry. All right. After this whole list, we were searching for some top quality companies since last week. And really, that's good. You all have done a wonderful work. Many of you have written the name of your search top quality companies. So now I think you are not depend on any other people's guideline that yaar batao kaun sa company acha hai, right? I hope. See, there may be some confusion कि Dhoni is good or Rohit Sharma is good, Virat Kohli is good or Dhoni is good. There might be some confusion between good and best. But friend, there might be no confusion between last player and top player. When we are going to bat, we are going to select 2 3 best player and give them responsibility. In the same way, when we are going to bowl, we are going to select 1 or 2 best player and then we are going to play. So there may be no confusion in best and worst player. You know, till now, I think that 80% companies we have segregated. You know, till now, that 80% companies are useless and no need to work on those companies, right? And you will move further, you will able to know that just 10 to 20% companies are those companies where we are going to focus.
because this 10-20% companies are going to capture 80-90% of the total market, right? So just yesterday, I think we have seen the Excel sheet of Karan Raj ji. Wonderful work, Karan Raj ji. यार बढ़िया काम किया आपने. Very good. So you have worked too hard and you have searched quality companies from whole lot of sectors, right? So this is the way how you are going to bifurcate 80% junk companies out of your way, and you are not going to see these 80% companies for next 20 years. We are going to focus only those companies which have capability to grow, right? Just a minute. Okay, so let us first of all then talk with Karan Raj ji, है ना? Where is here Karan Raj ji? Your sheets are there. Yeah, okay. Yes, Karan Raj ji, good evening. How are हाँ, you? गुड इवनिंग सर. फाइन सर, कैसे आप? बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया. आपने क्या सोच के ये सारी इंडस्ट्री पे काम कर लिया? Why you did this work? It was hard work in such a 4 to 5 days time frame. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. How it was ए, possible? नहीं तो एक था कि सेल्फ कुछ फाइंड आउट करने के लिए कि कौन से इंडस्ट्री में कौन सी कंपनीज हैं, उसी के लिए किया था सर. राइट. ओके, आपको जो आपने ये सब काम किया, आपको क्या सीखने को हाँ जी. मिला? क्या कुछ चीज बाहर निकल के आई कि ये नहीं करूंगा मैं अभी आने वाले समय में, और कुछ ऐसी डिस्कवरीज हुई कि अरे मेरे को इधर ही ध्यान देना है, आई विल फोकस ऑन दिस ऑल थिंग्स. ऐसे कुछ 2-3 पॉइंट आपको ध्यान में आए? हाँ जी, हाँ जी. कुछ कंपनीज काफी अच्छी हैं और काफी तो ऐसे हैं कि देखने की जरूरत ही नहीं है. ओके ओके, राइट. मैं आपका जो आपने काम किया हुआ है मैं उस पे आ जाता हूँ. ठीक. एक मिनट. इसमें आपकी जो इंडस्ट्री है हेल्थ की है. हेल्थ. ओके. एक मैं यहाँ पे कहूंगा करण राज जी, सी आई हाँ थिंक जी. रोड एंड हाईवेज. ओके, ये अमोल भाई ने किया है ना रोड एंड हाईवेज? चलो तो रोड एंड हाईवेज की तब बात करेंगे, नो प्रॉब्लम. हमें ये पता चल जाना चाहिए कि हमने देखा था कि रोड एंड हाईवेज वाज ग्रोइंग सेक्टर, बट जब आपने इसके फंडामेंटल देखे तो आपको पता चला कि डेप्थ वाइज वी आर नॉट कंफर्टेबल इन दिस सेक्टर. देखो, कोई हाँ जी. कंपनी नहीं है जिसका डेप्थ कम हो. all companies are debt burden. So it is clear that okay, DBL is good one, right? We can invest in DBL, but we should be prepared that they are in very debt burden, right? They are good in their sector, but overall debt is there. We should not invest more than 1 or 2%, right? ओके. ये जब मैंने आपका शीट देखा ना जो सुबह आपने भेजा था, उसमें से मेरे को ये दिखा तो मैंने वो डिलीट कर दिया था जहां पे आपने IRB लिखा था. ओके. बराबर ना? ठीक. ये भी पता चल जाना चाहिए करण राज जी कि ये सेक्टर चलो ग्रो हो रहा है, पर फायदा नहीं हो रहा है उसके ग्रोइंग का कुछ भी, क्योंकि कुछ सेक्टर कैसे होते हैं ना, दे नीड हाई कैपेक्स, दे नीड हाई कैपिटल, एंड दे हाँ आर जी. नॉट हैविंग गुड प्रॉफिट्स. सो अवॉइड दोस सेक्टर. ओके. ओके, सो आई हैव डन दिस हेल्थ केयर सर्विसेज. क्या बताओगे यहाँ पे करण राज जी? हाँ जी. हाँ, मैंने आपका ये हेल्थ केयर सर्विस ओपन कर दिया है. ओके. हाईलाइट करोगे? हाँ सर, इसमें ये लालपत का मुझे काफी अच्छा लगा और मेट्रोपोलिस का. बट कंफ्यूजन ये था ओके. कि ये कौन से क्राइटेरियाज मेन देखने, जैसे सेल्स देखते हैं, लेकिन जिसका सेल्स अच्छा होता है तो राइट. बाकी के क्राइटेरियाज थोड़े कम होते हैं, तो भी उसको ध्यान में रखना चाहिए कि जिसके सारे क्राइटेरियाज अच्छे हैं वो देखना है. देखो, सारे क्राइटेरिया अच्छे हो तभी हम फुल हम्म. कॉन्फिडेंस रख सकते हैं, है ना? यार ठीक है. एस्टर डिमेंड धंधा जबरदस्त करता है, पर अगर हम्म. डेप्ट कंफर्टेबल नहीं है
तो इसका हाँ जी। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इनके मार्केटिंग प्लान बहुत ही सॉलिड है, ये धंधा कर पाते हैं, पर हम्म, पैसा नहीं है इनके पास, तो ये लोग डेप्ट से धंधा कर रहे हैं। तो खाली 2.30 का इनका डेप्ट टू इक्विटी ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, तो ये कंफर्टेबल नहीं है ना। ओके देखो रिटर्न ठीक। ऑन इक्विटी भी इतना कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर क्या होगा कि वेल्थ नहीं बनेगी, ये धंधा करेंगे पर पैसा नहीं बनेगा अपना, राइट। ओके ठीक है। पहली प्रायोरिटी धंधे पे रखें, हम्म। धंधे के बाद नेट मार्जिन पे आ जाए डायरेक्टली। ये ओके कोई भी आप में से जो लोग ये सेक्टर पे काम कर रहे हो, सबसे पहले सेल्स पे ध्यान दीजिए, फिर सीधा नेट प्रॉफिट मार्जिन पे आ जाइए, क्योंकि नेट प्रॉफिट मार्जिन में डेप्ट वेप्ट सब आ गया, अच्छा ओके इफेक्टिव मैनेजमेंट आ गया, राइट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो यहाँ पे आपके और हिसाब से लालपत और मेट्रो, हाँ जी। दिस टू आर हाँ गुड जी। कंपनीज, राइट। हाँ जी। अच्छा ये और नहीं एक है ये अच्छा पूछना था। अपना ये, आप कहिए कौन कहिए। सा था, कि ये अपन जो फाइव विमटा, परसेंट 2% 3% जो प्लान करते हैं, यस, वो किस बेस पे, कैसे उसका फाइनल करना होता है? राइट। देखिए लालपत लैब अच्छा धंधा कर रहा है, पर सबसे बढ़िया नहीं है। ऐसा नहीं हाँ है कि जी। ये एकदम एस्टर डिमेन जैसा धंधा कर रहा है। हाँ जी। हेलो। सॉरी, देयर वाज सम डिस्टर्बेंस इन नॉइज। हाँ, तो लालपत लैब इज डूइंग गुड बिजनेस, पर बेस्ट नहीं है सेक्टर में, बराबर है। अब हाँ डेप्थ जी। इनके ऊपर एकदम कंफर्टेबल है, मार्जिन हम्म। इनके सबसे बढ़िया है, तो सारे गुण हैं। एक जगह पे थोड़ी नेगेटिविटी है कि धंधा इनका थोड़ा कम है, हम हाँ यहाँ जी। पे 4% निवेश कर सकते हैं। अब ओके। यह धंधा भी सबसे बढ़िया हो, तो हम यहाँ पे ज्यादा निवेश करते, राइट। अब अगर ठीक। लालपत बिल्कुल कम धंधा करता, जैसे ये सब है थायरोकेयर या उनके जितना धंधा लालपत करता, तो मैं इसमें खाली वन हाँ। या 2% ही निवेश करता, ओके राइट। तो ठीक। कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए। आप विराट कोहली को बैटिंग पे भेज रहे हो, आपको पता है ही कैन प्ले एग्रेसिव, ही कैन स्टैंड ऑन द पिच, वो वहीं पे खड़े रह सकते हैं पूरे दिन, तो यू हैव ऑल टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस। पर मान हाँ लीजिए जी। आपने कोई और खिलाड़ी को भेजा जो लंबा टिक हम्म। सकता है पर एग्रेसिव खेल नहीं सकता है, तो आपका मन थोड़ा नेगेटिव रहता है, थोड़ा, राइट। हाँ जी। तो यही चीज आपको बिजनेस इसमें देखनी है, राइट। ठीक है। तो यहाँ पे लालपत और मेट्रोपोलिस आपके हिसाब से बेस्ट है, बराबर है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, यहाँ पे हम थोड़ा ये ग्रीन कलर कर देते हैं, राइट। सी दिस ओके टू आर गुड कंपनीज, पर ठीक। लालपत पे ज्यादा हम वेटेज रखेंगे मेट्रोपोलिस से, क्योंकि लालपत ज्यादा एक्सपांडेड बिजनेस कर रहा है, बराबर है। ओके। आपकी लड़ाई करण राज जी ये टॉप के हाँ। प्लेयर में होगी, इट्स ऑल राइट, ओके बॉटम मोस्ट प्लेयर से लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये सब तो निकल गए ना आपकी लिस्ट से। हाँ निकल गए सर। एक आपको ये तो नहीं है थायरो कि मैं सस्ता सुंदर लूं। नहीं हम्म, नहीं। अच्छा थायरोकेयर का बराबर। सोच मिस, थायरोकेयर भी ऐसे ठीक लग रहा है, हाँ, लेकिन ऑलरेडी 2 ऑप्शन हो गए थे, इसलिए उसको बाद में ड्रॉप रखा था मैंने। राइट राइट। देखो थायरोकेयर भी अच्छा कंपनी है, पर जब आप उसे लालपत से कंपेयर करते हो तो लालपत लालपत है और थायरोकेयर थायरोकेयर है। हाँ डेप्थ जी। वाइज भी इतना कंफर्टेबल नहीं है जितना आपको दूसरी जगह पे मिलेगा। यहाँ पे कुछ आईसीआर में प्रॉब्लम है, कुछ आप रिचेक कर लेना आईसीआर, ओके ठीक है सर। थोड़ा देख लेना आपकी कुछ डेटा में प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि थायरोकेयर का आईसीआर कम है। रिटर्न ऑन अच्छा। इक्विटी देखो कंफर्टेबल ही है,
तो ये थायरोकेयर में आपका निवेश है, घबराने का जरूर नहीं है, पैसा बनने वाला ओके है। बट इफ यू आर ठीक न्यू है। इन्वेस्टर, आज आपने सोचा कि आई विल इन्वेस्ट इन हेल्थ केयर, वी शुड हाँ गो विद डॉक्टर लाजपत लैब फर्स्ट, राइट? ओके ठीक है। तो तो इसी जैसे अभी प्रकार से अपन, हाँ 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 जी, जी, इसी प्रकार से नहीं, हाँ 3-4 कंपनी सिलेक्ट कर लो, और किस पे ओके फोकस नहीं करना है ना वो भी सिलेक्ट कर दो, अच्छा ठीक है। राइट? क्योंकि मैंने ठीक है सर। बरसों बिगाड़े हैं उन कंपनियों पे जिनमें दम ही नहीं था, पर मैं उनमें खूबियां ढूंढता रहता था, राइट? क्योंकि कहीं ना ठीक कहीं से टीप आती थी, मुझे लगता था शायद ये लासा अच्छी होगी, शायद विमता अच्छी होगी, क्योंकि जब तेजी का माहौल होता है, ये सब कंपनियां चलती है एक्सपेक्टेशन पे कि सबके धंधे बढ़ेंगे, राइट? ठीक है। कुछ कंपनियां 5 साल चलेगी, कुछ कंपनियां 10 साल के बाद टूटेगी, वापस पुरानी चीज पे आ जाएगी। सो फोकस ओके ओनली ऑन बिजनेस। डन। ठीक है। ओके, और कौन सा सेक्टर में यहाँ पे ओपन करूं इसके अलावा? ये हेल्थ फैसिलिटी का भी मैंने किया हुआ है, हेल्थ केयर फैसिलिटी। ओके गुड। यस, यहाँ पे क्या हाईलाइट करेंगे? सर यहाँ पर अपोलो का बिजनेस काफी ज्यादा है, लेकिन मार्जिन काफी कम है कंपेरेटिव नारायण हृदयालय में। राइट, राइट। तो देखो, ये उस डिस्कवरी होना चाहिए करण राज भाई, आंख बंद करके नहीं टूट पड़ना है कि हाँ अपोलो जी इज बेस्ट, बढ़िया धंधा है, सीधा चलो कल 5% ले लेते हैं, नहीं करने का ऐसा, राइट? आपको राइट आपकी कंपनी के नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट दोनों ध्यान में रहे कि ठीक अपोलो, है। यू नो दैट दे आर लीडर इन हॉस्पिटल्स, बाकी कंपनियां उनके आधे पे है, तो कोई अपोलो के नजदीक भी नहीं है, दे आर बेस्ट। लेकिन डेप्थ वाइज हम देखें तो हम कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, दे आर विद डेप्थ हाँ जी बर्डन, उसमें कोई डाउट नहीं है, हाई डेप्थ है, जिसकी हाँ जी वजह से उनके मार्जिन भी कम है, राइट? लो हाँ जी मार्जिन। फिर भी आप अगर अपोलो हॉस्पिटल लेते हो, वी कैन इन्वेस्ट 1 or 2% बिकॉज ही इज लीडर, राइट? हम्म नारायण ठीक है। हृदयालय अगर आप लेते हो तो भी आप ज्यादा हम्म पैसा नहीं डाल सकते, क्योंकि धंधा ये इतना बड़ा नहीं कर पा रहे, हाँ जी। राइट? इनके ऊपर भी डेप्थ है ना? खाली अ- 1.34 का आईसीआर है। अच्छा, तो ऐसे तो कंफर्टेबल आपका, आईसीआर कितना होता है सर नॉर्मली? देखो, 10 कंफर्टेबल या आईसीआर कम से कम 50 तो हो, 50 के आसपास हो, तो हम ये माने ठीक कि आपका ओके कंपनी को जितना डेप्थ पे करना है, उससे 50 हाँ गुना तो उसका पैसा बच रहा है, राइट? सी, आपका जब ओके फॉर्मूला देख लो, ठीक इनकम हाँ माइनस जी एक्सपेंस, पैसा बचा कितना, हाँ अब मुझे डेप पे हाँ करना जी है, मैं हाँ डेप पे कर रहा हूं तब मैं कंफर्टेबल हूं, राइट? अब ये ओके नारायण हृदयालय और अपोलो हॉस्पिटल एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह है कि जो लाख रुपए कमाते हैं और 40-50 हजार का उनका बैंक का इंस्टॉलमेंट चलता है, ऐसा ही हुआ ना? हाँ जी तो फिर वो हाई हाँ जी हाँ कंफर्टेबल जी चीज नहीं हुई। हाई कंफर्टेबल किसको बोलेंगे? लाख रुपए कमा रहे हैं और खाली 10,000 रुपया अगर इंस्टॉलमेंट में जा रहा है, देन इट इज ऑल राइट, राइट? ठीक है। और हम निवेश करण राज जी कितने समय के लिए कर रहे हैं? 20 साल, 25 साल, तो कंफर्टेबल होना चाहिए हमें थोड़ा, ऐसा नहीं कि 2 साल बाद में ठीक कंपनी चेंज कर लूं, राइट? ठीक है। ओके, हाँ ठीक है सर। ओके here your idea is clear. Apollo Hospital and NH are good one, but both companies, we should not invest more हाई than 2 डेप्थ to 3%, right? या high हाँ जी debt. ठीक है। ओके, मैंने वही और लिखा हुआ इसमें से टू कौन टू सा परसेंट सेक्टर लिखा हुआ आपने किया था? हाँ, नहीं, बहुत अच्छा मैंने। किया, देखो अभी नहीं आपको अंदाजा आने लगा ना। हाँ तो जी ये इसी प्रकार से क्या है करण राज जी, आप धीमे धीमे ये अंदाजा और इंप्रूव होगा, दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। ठीक अब आप ठीक है लोटस आई है, ये लुक्स करके कुछ है, ये सब जगह पे जाने का जरूरी नहीं है। 80% इन्वेस्टर आर वेस्टिंग देयर टाइम इन बॉटम मोस्ट कंपनीज जो कभी नहीं हाँ चलेगी, जी right? हमें थोड़ा ठीक अपस्ट्रीम में तैरना है, बराबर ना? ठीक हम्म, ठीक है सर। okay. इसमें और कोई सेक्टर जिसमें आपका काम था? नहीं सर, इस शीट में तो मैंने सिर्फ ये दो ही क्लियर के रखे हैं, राइट, बाकी। ओके, ओके, चलिए बढ़िया, वेरी गुड। और करण राज जी के लिए तालियां हो जाए, बहुत अच्छा काम किया आपने, वंडरफुल। थैंक यू सर, थैंक यू।
So next we are going to move to Amol Kushwa. Amol ji, are you online right now? Let me see. I'm Yes, online. Amol. Yeah, Okay. So you are. Your voice is clear. Amol, I yeah. will open Thank you. your spreadsheet of special consumer road and highways and integrate. Which one? Okay, let me open this special consumer service. अमोल, आपने भी कई सेक्टर पे काम किया है ना? काफी सेक्टर पे काम किया, सो दैट्स वेरी गुड. क्या आपको नई चीज डिस्कवर हुई जो आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे? यस अमोल. नहीं का इससे एक आइडिया क्लियर होता है कि जैसे कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त पहले कैसे, जैसे मैं तो भी ऐसे ही फॉलो करता था क्योंकि उसका आइडिया नहीं था, तो ब्लाइंडली किसी ने कोई यूट्यूब से या किसी के जरिए जो भी हिंट्स मिले उसके बेसिस पे थोड़ा थोड़ा कभी पैसा इन्वेस्टमेंट करते थे. बट अभी ये सीखने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, किसी पे डिपेंड तो नहीं रहना, जो एक्चुअल डेटा बोलता है उसके हिसाब से हम हमारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. यानी किसी के टिप्स के ऊपर या ऐसी चीजों पे डिपेंड रह के ये सब इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा किसी के ऊपर. और यहाँ पे कैसा एक्चुअल में कुछ जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे कौन से भी टर्म के लिए, समझो 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, जैसा डेटा रहेगा तो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं. एंड किस में करना चाहिए Right. किस में नहीं करना चाहिए खुद ही जज कर सकते हैं कौन सी कंपनी बेस्ट हो सकती है और क्यों बेस्ट है, तो क्यों बेस्ट है. ये सब चीजें थोड़ा इससे क्लियर हो जाता है राइट, सर. सही बात है. अमोल, आपका एज कितना है? मेरा 33, 30 34? ओहो, 30 सर, क्या 30. ये बात है. बहुत बढ़िया. तो वेरी गुड. 30 मतलब तो आप एवरेज जो एज है इंडिया का वही है 30. सी, आप अगर टिमलीज में आज से निवेश करोगे, मैं मानता हूं आपको रिटायरमेंट होने का कब सोचा है आपने? कोई एक एज सोचा है कि आई विल रिटायर ड्यूरिंग दिस एज? ऐसा तो कुछ सोचा नहीं है सर, बट तो भी एज यूजुअल जैसे बाकी लोग करते हैं 55-60 के आसपास. ऐसा कुछ सोचा नहीं है. अभी आप अंदाजा लगाओ अमोल कि टिमलीज कंपनी 100 साल चलने वाली है. ऐसा हम मानते हैं कि चलो टिमलीज हो, SIS हो, ये बढ़िया कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं इंडिया की. ये सेक्टर तो अभी खाली शुरू हुआ है इंडिया में. दिस इज नॉट बिग सेक्टर इन इंडिया. तो ये जैसे धीमे धीमे धंधा करते जाएंगे, बड़े बनते जाएंगे, आप यही कंपनी को जब 20 साल बाद देखोगे, ये कहाँ होगी भगवान जाने. कितने कंट्रीज में ये लोग बिजनेस कर रहे होंगे. अब आपके पास कितना समय है सोचो. लंबा समय है. आप शांति से SIP करते जाओ, इकट्ठा करते जाओ, आपके पास 1000 टिमलीज इकट्ठा हो जाएंगे. 1000. आप रिटायर हो जाओ, देखो शांति से घर बैठे बैठे टिमलीज हमें जिंदगी भर पैसा देगा. अमोल, मैंने सबको म्यूट कर दिया था क्योंकि थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा था. आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. या तो ह्यूज वेल्थ क्रिएशन होने ही वाली है आप में. कोई रोक नहीं सकता है इस चीज को. एक ही चीज रोक सकती है अमोल, पता है क्या? क्या? आपका जो वेल्थ क्रिएशन होने वाला है उसको एक ही चीज रोकेगा, और वो होगा कि जब कभी 3-4 साल बाद अमोल को ऐसा लगेगा कि मैंने तो यार 5 लाख रुपया टिमलीज में लगाया, देखो 50 लाख तो ऑलरेडी हो गया है, मुझे फ्यूचर में भी ऑप्शन है, मैं क्यों ना 5 लाख के बदले 50 लाख के फ्यूचर ले लूं, तो आज 5 करोड़ होते. इसे कहते हैं लिवरेज. कभी नहीं करने का. 1 रुपए की उधारी नहीं. कभी भी लोन के पैसे से, लिवरेज से कभी कोई काम नहीं करे. नहीं तो कंफर्टेबल नहीं रहेंगे. हमें शांति से जिंदगी जीनी है. बिल्कुल. तो कभी भी एक्सपोजर मत करना. राइट? नहीं तो वेल्थ क्रिएट करने ही वाले हो आप. राइट? अब ये सेक्टर में आप क्या बताओगे? बताओ अमोल, स्पेशल कंज्यूमर में आपकी टिप्पणी. टिप्पणी यही थी सर कि जैसे कैलकुलेट किया तो ऑलरेडी सभी चीजें वहां पे डेटा में एक्चुअली हाईलाइट ही कर दिया. जैसे टीमलीज सबसे ज्यादा मार्केट कैप है, वो सेल भी सॉरी सबसे मार्केट कैप ज्यादा नहीं है बट सेल ज्यादा करते हैं, तो उसका प्रॉफिट भी ज्यादा ही है, ROE भी ज्यादा ही है और NPM भी ज्यादा ही है.
तो उसमें कुछ ऐसा बराबर। डिफिकल्ट नहीं हुआ सॉर्ट आउट करने के लिए। बट फिर सेकंड नंबर पे SIS आता था, बट उसका राइट। उसको सेकंड इसलिए दिया मैंने क्योंकि उसका थोड़ा सा सेल्स अच्छा था, पैट अच्छा है, ROE तो उतना अच्छा नहीं था, बट NPM भी थोड़ा ठीक ही था, उसके हिसाब से उसको सेकंड बराबर। किया। बट इसमें मुझे ओके। डाउट ये था सर, जब हम इसका एवरेज करते हैं NPM का और जैसे ROE का, तो राइट। अभी इस सेक्टर में तो निगेटिव नहीं है, बट किसी और सेक्टर में निगेटिव है, वो करते समय उनको कैलकुलेट राइट। करना चाहिए या फिर उनको छोड़ के ही उसका एवरेज निकालना चाहिए? उसके हिसाब से ओके। जैसे हम ये जो रेटिंग दे सकते हैं उनको NPM की और इसकी। राइट, देखो ये जो आपकी जो क्वेरी है, ये छोटी क्वेरी नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी है। क्योंकि मैं बरसों तक क्या करता था पता है, मैं ये सबका एवरेज करता था। राइट, जो अच्छी चीज नहीं है, नहीं करना चाहिए ये सबका एवरेज। आपने मेरे ख्याल से इन सबका एवरेज किया है? नहीं सर, मैंने एक का भी नहीं नहीं किया किया है। वैसे। राइट, निगेटिव वालों बढ़िया का तो किया। कंसिडर ही नहीं किया मोस्टली, क्योंकि उससे फिर नहीं करने का। वो एवरेज थी ना, वो बड़ी बहुत कम आती थी, इसलिए मैं निगेटिव को कंसिडर ही नहीं किया। मोस्ट ऑफ मैंने देखो जितने भी कोई इंडस्ट्रीज पे भी काम किया। सेक्टर देखो, अमोल कोई भी सेक्टर ले लो, 80% कंपनियां थर्ड क्लास होगी। We are not going to focus any time in these 80% companies. These 80% companies are making losses. They are having lesser margin. And due to these all 80% companies, your average figure will be very bad. So you will always feel that, oh my God, this is not good industry. Oh my God, this is not good industry. क्यों? Due to these 80% companies who are not making profits. अब मेरे को एक बात बताओ अमोल, बाकी की कंपनियों का धंधे में कोई भी योगदान है क्या? आपने बताया नहीं, बिल्कुल ये नहीं। पूरी इंडस्ट्री मिलके 7,000 करोड़ का धंधा कर रही है। इनका जब हाँ, धंधे में कोई योगदान नहीं है तो हम मार्जिन में क्यों इनको गिने? कोई यस, प्रश्न बनता है इनको गिनने का मार्जिन में? नहीं गिनने का। बराबर है। ओके, तो मैं बरसों बाद ये यस, सीखा था कि ओके, लेट मी काउंट मार्जिन ऑफ ओनली टॉप कंपनीज। फिर मेरी गाड़ी परफेक्ट चलने लगी, फिर मुझे पता चलने लगा। आप मानोगे अमोल, आईटी कंसल्टिंग कैसी इंडस्ट्री है? आप में से जो हाँ, भी लोग ग्रोइंग सुन है। रहे हो ये आज का प्रेजेंटेशन, हाउ इज आईटी कंसल्टिंग इंडस्ट्री? बेस्ट, बेस्ट। हाँ, But still, if you will total all this IT consulting industries margin, it will be negative. तो यार क्या IT consulting is not a good industry? नहीं, it is good. पर 80% companies everywhere are not making profits. So due to them, your average margin will not good. That is the reason what we will do. Just consider margin or ROE or ICR of only top companies, right? In this case, Amol, you should consider only these two companies. कौन सा? टीमलीज और SIS। इंग्लिश और ऐसे। बाकी किसी यस, का कंसिडर मत करो, राइट? मैं यहाँ चेंज कर दूं? देखो हाँ सर, कैसे करेंगे। इधर एवरेज पे गए और खाली दो कंपनियां लिया, मार्जिन, ओके, रिटर्न ऑन नेट पेड अप इक्विटी और ICR। नाउ इट इज परफेक्ट, राइट? नहीं तो जिंदगी में कभी भी ये मार्जिन पॉजिटिव नहीं आने वाले अगर आप सबको कंसीडर करोगे तो, राइट? ये ऐसी बात हो गई कि हम कोई भी 10 खिलाड़ी ले लेते और उनका एवरेज रन बना के सोचते कि ये लोग परफॉर्म करेंगे, क्रिकेट अच्छा खेलेंगे कि नहीं। नहीं खेलेंगे। टॉप का मार्जिन देखने का, जिनको हम बैटिंग में भेजने वाले, बराबर है? ओके, ओके, सो योर आइडिया इज क्लियर फॉर टिमलीज एंड SIS? यस सर, So I have also invested in Timleaf since IPO. अभी भी मैं SIP कर रहा हूं इसमें, है ना? क्यों पता चल गया होगा। अब श्रृंगार में मैं हाँ, कभी नहीं करूंगा, बराबर? ये इसके टिप बहुत आती है श्रृंगार की, लेकिन ये टिप भी पे नहीं चलने का, बराबर? ओके, यस सर। अनदर सेक्टर हम इसके अलावा, रोड एंड हाईवेज भी किया है सर। या रोड एंड हाईवेज, वेरी गुड। चलिए बताइए आप अपने हिसाब से क्या मिला आपको? इस पे थोड़ा डाउट मुझे था वैसे। फर्स्ट एंड सेकंड कंपनी फाइंड आउट करना तो डिफिकल्ट नहीं गया, क्योंकि जो पैरामीटर जो आपने सजेस्ट किए थे उसके हिसाब से सेल्स, प्रॉफिट
ROE और NPM, उसके बेसिस पे तो इजीली फाइंड आउट किया। बट एक कंपनी जैसे वो क्या नाम है उसका, देखिए उसका NPM 19 है, ये सद्भाव इंजीनियरिंग। सद्भाव इंजीनियरिंग का, ठीक। यस। बट उसका सेल्स भी अच्छा ही है, बट प्रॉफिट उसका अच्छा नहीं था उतना, सेल्स भी काफी कम है, बट थोड़ा एनपीए, बट जितना सेल्स करता है ना उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट तो ठीक ठाक ही लगा था, और उसका एनपीएम भी काफी अच्छा लगा था। ऐसे वक्त उनको कंसिडर करना चाहिए क्या, क्योंकि सेल के हिसाब से उनका प्रॉफिट थोड़ा ठीक लगा। बराबर है, पर तो सेल्स ऐसा, करने चाहिए ना ये लोग अच्छे, बराबर की नहीं? सेल्स ओके, इतने अच्छे नहीं है अमूल के, है ना, बहुत ही कम धंधा कर रहे हैं। सी कम धंधे का क्या मतलब हुआ पता है? जैसे ये गुजरात का कंपनी है, इनको गुजरात में कई ऑर्डर मिलते हैं, रीजनल प्लेयर है, कभी कोई पॉलिटिशियन से गड़बड़ हो गई, कभी कुछ हुआ तो थोड़ा सरकार बदल गई तो गड़बड़ हो गई, होता है कि नहीं ये सब कंपनियों को? अब हम कहाँ इन चीज पे डिपेंड रखेंगे कि यार इनकी इन सरकार से अच्छी बनती है तो धंधा मिल रहा है, कल नहीं मिले तो। इसीलिए नेशनल प्लेयर में रहे, डोंट गो फॉर रीजनल प्लेयर। नेशनल प्लेयर कौन है? डीबीएल, दिलीप बिल्डकॉन, राइट, आईआरबी। यस, बड़ा धंधा ये क्यों कर पा रहे? क्योंकि ये पूरे इंडिया में धंधा कर रहे हैं, राइट। तो आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाती है, आपको वो डर नहीं रहता है कि ऐसा हुआ तो वैसा हो जाएगा, राइट। अब ओके सर। तो बड़ा प्लेयर लीजिए, लेकिन ये एक दो तीन चार, कुछ ये चार पांच ये यहाँ पे अच्छे। और कुछ कहानी इसमें कुछ समझ में आई रोड एंड हाईवेज की? बाकी कुछ तो नहीं, बट उनका जितना वो सेल करते हैं ना उसके हिसाब से उनका प्रॉफिट अगर कंपेयर करो तो काफी कम लगता है। जैसे 10,000 का सेल भी किए तो प्रॉफिट सिर्फ उतना सा हो सकता है, उनका इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ ज्यादा हो सकता है उस सब चीजों के राइट, लिए ये वो ऐसा। धंधा है जो हाई कैपिटल मांगता है, बहुत बड़े कैपेक्स चाहिए इस धंधे के लिए। भी तो ऐसा हाल हो गया था अमूल की सरकार रोड के टेंडर निकालती थी, उनको कंपनियां नहीं मिलती थी लेने वाली, क्योंकि प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। तो सरकार ने अलग रास्ते निकाले कि नहीं यार, रोड तो बनाना ही है, अब ये कंपनियां प्रॉफिट नहीं करेगी तो फिर इनको कुछ और तरीके देने पड़ेंगे। तो इनको आप जानते हो एक अलग सेक्टर में डाला गया जहां से इनको लोन भी अभी मिल पाए। एक चीज क्लियर है कि ये सेक्टर को हाई डेप्थ चाहिए। आपको आईसीआर किसी का कोई यहाँ पे डेप्थ फ्री कंपनी नहीं मिली आपको, राइट। तो इससे ये चीज डिस्कवर होती है कि रोड एंड हाईवेज एक बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला सेक्टर है, यहाँ पे कोई कंपनी डेप्थ फ्री नहीं है। तो आपके भाव में बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी, कभी कभी ये लॉसेस करेगी और कभी प्रॉफिट करेगी। तो हमारी जो फ्यूचर है वो भी गड़बड़ हो जाएगा, बराबर है, हमारा फ्यूचर भी बिगड़ा हुआ रहेगा ना, क्योंकि कभी प्रॉफिट कभी ये लॉस होगा। फिर भी अगर आपको इन्वेस्ट करना है, डीबीएल इसमें सबसे अच्छा है, जो धंधा कर रहा है, मार्जिन कर रहा है। लेकिन बड़ी रकम कभी भी मत निवेश करो, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी डेप्थ के कारण, राइट। अगर आपके पास और बढ़िया इंडस्ट्रीज है जो हाई ग्रोथ कर रही है, कम डेप्थ से काम चल रहा है, तो आपको वहां निवेश करना चाहिए, बराबर आपको, ओके सर। है ना। वो मार मार के सेक्टर में से कुछ आया हूं तो ढूंढ के ही जाऊंगा, ऐसा नहीं करने का, बराबर। ओके, ओके सर। और कोई सेक्टर था आपका अमोल? हाँ है ना सर, इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस का भी मैंने किया था। राइट, इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है ना अमोल, यहाँ पे आपको एक चीज समझ जाओ कि रिलायंस शॉर्ट टर्म के लिए ये सेक्टर में है। रिलायंस का ओके, 50% धंधा इंटीग्रेटेड ऑयल से हो रहा है। अभी धीमे धीमे ये हो सकता है 3 एक साल में डिपार्टमेंट स्टोर, टेक्नोलॉजी अलग सेक्टर में आ जाए, राइट। तो रिलायंस का कोई लेना देना ही नहीं है इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस सेक्टर से, वैसे देखा जाए तो, राइट। ओके। लेकिन एक गड़बड़ है अमोल, क्यों ऐसा हुआ? आपने ये सेल्स सब स्टैंड अलोन लिए हैं, नहीं प्रॉफिट सर, स्टैंड अलोन लिए कंसोलिडेटेड। है? नहीं नहीं, 3.5 लाख करोड़ का धंधा नहीं है। रिलायंस का धंधा तो 6 लाख करोड़ से ज्यादा का है। ओके, रीचेक कर लेना आप। देखो ऑयल एंड गैस में ओके, से ये 3.5 लाख करोड़ कर रहे हैं, डिपार्टमेंट स्टोर में से 1.5 लाख करोड़ कर रहे हैं, कितने अलग अलग सेक्टर है। तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, आप इसको रीचेक कर लेना। इनका प्रॉफिट भी 40,000 करोड़ है, तो ये दोनों फिगर आपकी चेंज हो जाएगी।
राइट। पर यहाँ ओके क्या सर। समझ में आया बताओ मेरे को। इसमें एक था, अगर जैसे सेल्स पैट और आरओई के हिसाब से देखिए, जैसे गुजरात गैस है, हम्म रिलायंस तो टॉप पे रहेगा क्योंकि वो धंधा भी उतना करते हैं, प्रॉफिट भी उतना कमाते हैं, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं। बट ऐसे कंपेयर कर गुजरात गैस और अदानी गैस, उनमें हम्म गुजरात गैस अच्छा सेल्स करता है, प्रॉफिट भी हम्म उनका ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू अदानी गैस है। बट बाकी जैसे हम्म एनपीएम और आरओई में उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे कंपेयर टू अदानी बराबर। गैस। तो ऐसे वक्त जैसे थोड़ा डाउट था कि ऐसे वक्त क्या सिलेक्ट करना चाहिए, सेल्स को देख के सिलेक्ट करना चाहिए या फिर बाकी पैरामीटर, क्योंकि बाकी पैरामीटर को अगर कंसीडर ना करो तो फिर गुजरात गैस सही होता है क्योंकि उसका सेल्स ज्यादा है कंपेयर टू अदानी गैस, और हम्म बाकी पैरामीटर तो सही नहीं। जैसे काफी वीडियोस में आप बताते रहते कि जिनका सेल्स बढ़ते जाता है वैसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर इस सेल बराबर वाले फैक्टर को कंसिडर करो तो फिर गुजरात गैस बेस्ट होता है अदानी से। तो ऐसे वक्त थोड़ा बराबर। जजमेंट के लिए थोड़ा डाउट होता है कि एग्जैक्टली किसको कैसी प्रायोरिटीज देनी चाहिए। राइट अमोल, वॉरेन बुफे साहब ने ये डाउट पे बहुत अच्छा कहा है कि जब आपको डेटा देख के, इफ यू आर इन डाउट इवन आफ्टर सीइंग डेटा, तो ये मत सोचो कि आपको पता नहीं चल रहा है। ये है ही ऐसा, ये डाउटफुल केस है। बराबर, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट देयर इज अ कंफ्यूजन, हाई क्लियरिटी नहीं है, सीधी बात है। एक चीज यहां पे मुझे क्लियर दिखती है कि रिलायंस के नजदीक भी कोई कंपनी नहीं पहुंच सकती है। दे आर यस। ट्रेमेंडसली डिफरेंट, राइट। आप उसे अगर इंटीग्रेटेड ऑयल में गिनो तो भी ये सबके पप्पा है। अगर आप इन्हें डिपार्टमेंट स्टोर में गिनो जहां पे ये 1.5 लाख करोड़ का धंधा कर रहे हैं, सोचो डीमार्ट हो या फ्यूचर हो, ये सारे डिपार्टमेंट स्टोर मिलके भी उनके जितना धंधा नहीं कर रहे। तो आप इनको डिपार्टमेंट स्टोर में रखोगे, वहां पे भी यही राजा है। तो रिलायंस अनडिस्प्यूटेबल लीडर है, कोई डाउट नहीं। एक प्रॉब्लम है लेकिन यहाँ पे डेप्थ ज्यादा है। देखो आपका आईसीआर कितना आया, 2.6 खाली है। 3, हम्म। राइट। तो डेप्थ ज्यादा है, yes। उसी की ओर ये लोग बढ़ रहे हैं। आपने देखा अभी फेसबुक ने निवेश किया, कल किसी और ने भी हम्म। बोला कि मैं भी निवेश करूंगा। रोज नए नए निवेशक क्यों आ रहे हैं? क्योंकि रिलायंस वांट टू बिकम डेट फ्री, वो भी जानते हैं कि दे आर हैविंग हाई डेप्थ। तो हम देखेंगे कि आने वाले 1-1.5 साल में ये आईसीआर यहां से निकल के 20 या 25 आ जाएगा, क्योंकि उनका कमिटमेंट है। वो चाहते हैं कि डेप्थ खत्म कर दे, राइट। तो हम इन पे ट्रस्ट रख सकते हैं। देखो बाकी कोई कंपनी ऐसा बोले ना वी वांट टू बिकम डेप्थ फ्री, तो ट्रस्ट मत रखो। सब सपना देखते हैं कि हमें डेप्थ फ्री होना है, पर नहीं हो पाते हैं, राइट। अभी रिलायंस ने भी सपना देखा था पिछले साल कि वी विल बी डेप्थ फ्री, लेकिन कई अड़चने आई। ऑयल क्रूड के भाव ऐसे गिर गए कि जो पैसा देने वाले थे वो कंपनी को प्रॉब्लम है, तो भी रिलायंस ने कई रास्ते निकाले। तो यानी ये लोग कमिटेड लोग हैं, इन्होंने जो बोला है वो लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि दे विल बी डेट फ्री। तो यहां पे आपको रिलायंस के साथ जाना चाहिए। अब ये जो एकदम कम धंधा कर रही है ना कंपनी, ये बहुत छोटे धंधे हैं, आप इन पे भरोसा भी रख सकते हो, पर हाई वॉलेटिलिटी रहती है वहां पे जहां धंधे बहुत छोटे होते हैं, राइट। सो गो फॉर ओके द सर। प्लेयर विथ गुड बिजनेस, है ना। और रिलायंस से अच्छा धंधा तो कौन करता है यहाँ पे, बराबर है। कोई नहीं ओके। सर, बट ऐसा। यस। हाँ हाँ, और कहिए एक कहिए। एडवर्टाइजमेंट वाला। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था, अगर हमें ऐसा कंपनी को ऐसा सिलेक्ट करना हो टॉप, फिर उससे थोड़ा कम, यानी वन फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे सीक्वेंस में अगर सिलेक्ट करना हो तो कौन ऐसे फैक्टर, जैसे सेल्स, प्रॉफिट, आरओई, एनपीएम, इसको वेटे या प्रायोरिटीज वाइज कैसा उसको इंडिकेट करना है जब ऐसे कंफ्यूजन के वक्त। राइट, जैसे यही आप प्रायोरिटी है। एडवर्टाइजमेंट वाला ओपन कीजिएगा ना शीट, उसमें काफी सारा दिख जाएंगे, इसमें बहुत कम कम बराबर कंपनीज है, कंपनीज हैं, तो इसमें तो बराबर वो है, भी किया नो है मैंने। प्रॉब्लम। देखो क्या प्रायोरिटी रखे, फर्स्ट प्रायोरिटी सेल्स है, राइट। सेल्स से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है, क्योंकि धंधा इन लोगों ने चालू क्यों किया था, ये सेल्स करने के लिए। गुजरात गैस ने भी धंधा चालू क्यों किया था, सेल्स लाने के लिए। तो आप सबने धंधा किया है सेल्स के लिए। अब हम देखते हैं कि आप कितना सेल्स कर पा रहे हो। सो सेल्स इज योर टॉप प्रायोरिटी।
सेकंड प्रायोरिटी, यू आर एबल टू कन्वर्ट योर सेल्स टू प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कौन बढ़िया कर रहे हैं, प्रॉफिट इज योर सेकंड प्रायोरिटी। योर थर्ड प्रायोरिटी इज नेट प्रॉफिट मार्जिन, राइट, कि भी आप कितना मार्जिन घर ले जा पा रहे हो। द बेटर द मार्जिन, द बेटर डेप्थ पोजीशन होगी उनकी, राइट। नेट मार्जिन के बाद आईसीआर और आरओई, ये दोनों को एक ही तराजू में देखे, बराबर। प्रायोरिटी वाइज दिस बोथ आर सेम, ऐसा देखो, ओके बराबर है। ओके सर। यहां यस पे नेट मार्जिन आपके अदानी गैस के ज्यादा है, आईसीआर थोड़ा कंफर्टेबल है, इतना ज्यादा कंफर्टेबल भी नहीं बोल सकते। देखो आईसीआर थोड़ा 14, यानी इतना बढ़िया भी नहीं है, राइट। हाँ तो डेप्ट तो है ओके ही अदानी गैस पे, उस पर कोई वो नहीं है, डेप्ट फ्री कंपनी नहीं है ये। अगर अदानी बिल्कुल डेप्ट फ्री होती तो हम इस पे थोड़ा ध्यान देते, चलो भाई तुम थोड़ा कम धंधा कर रहे हो फिर भी निवेश करेंगे, पर ज्यादा तो नहीं करेंगे। अमूल 1-2% से ज्यादा मत डालो वो कंपनियों में जो बहुत छोटी है, भले डेप्ट फ्री हो। हमें तुम्हारे छोटे ओके होने से कोई गिला शिकवा नहीं है, पर तुम अपने सेक्टर का टॉप मार्केट प्लेयर तो होने ही चाहिए, राइट। जो धंधा तुम कर रहे हो तुम्हारा एक्सपांशन बड़ा होना चाहिए, राइट। ये सब देखने के बाद भी अगर कंफ्यूजन आ रहा है क्या, ये सारी चीज देखने के बाद भी, तो भी एक रामबाण उपाय है, आखिरी तोड़, लास्ट प्रायोरिटी, और वो है ग्रोथ। क्या है, ग्रोथ ग्रोथ। चेक करो कि आप जो 2-3 कंपनी में कंफ्यूजन हो, जैसे कार्स यूटिलिटी है फॉर एग्जांपल, मैं जस्ट कह रहा हूं, आपको मारुति एंड M&M में कंफ्यूजन है, यार बोथ आर गुड कंपनीज, बोथ हैव गुड मार्जिन्स, अब मैं क्या करूं। तो ग्रोथ डाल दो ना इधर और चेक करो कि कौन सी कंपनी कितने ग्रोथ से बढ़ रही है, राइट। ये भी तो एक फैक्टर हुआ ना, बराबर है। हाँ तो ग्रोथ भी आपको गाइड कर सकता है कि यार मारुति इज एबल टू ग्रो बाय 15% CAGR, पर जो कंपनी आप देख रहे हो वो तो 10% से ही बढ़ रही है। इसका मतलब मारुति में कुछ दम है, उनको ग्रोथ कैसे बेहतर करना ये आता है, बराबर है। सो दीज आर और ओके सर। पैरामीटर जिसके द्वारा आप टॉप कंपनीज तक पहुंचोगे। फिर भी मेरे हिसाब से 80% कंपनी तो आपकी निकल गई होगी बाहर, बराबर है। यस अब यस जो यस झगड़ा है वो आपकी टॉप की 2-3 कंपनी में है, तो वो चलने दो, थोड़ा झगड़ा चलेगा। बराबर। ओके सर। यस ओके, सो होप यू विल डू गुड। यस सर। अभी अहमद भाई, लेट मी चेक, अहमद भाई आए क्या ऑनलाइन? अहमद भाई यू आर ऑनलाइन राइट नाउ? नो, मुझे नाम तो नहीं दिख रहा है आपका अहमद भाई। ओके, अर्पण कुमार, आर यू ऑनलाइन? जी सर, जी सर। हेलो सर, यस नमस्कार सर। अर्पण, हेलो एंड वेलकम। नमस्कार अर्पण, कौन सा हाँ, लैंग्वेज कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए? हिंदी सर, इंग्लिश, हिंदी हिंदी? हिंदी हिंदी। ओके, आपने, हाँ, आपने कौन से सेक्टर में काम किया है अर्पण? सर मैंने सीट आपको मेल कर दी है, कल बात हुई थी सर से, तब मैंने मेल कर दी है। सभी मैंने तो सभी पे काम किया है, 127 सेक्टर पे भी। अरे क्या बात है अर्पण, सारे सेक्टर में काम किया है। हाँ हाँ हाँ, मैंने ऑनलाइन मेल पे भेजा है। अरे तो पहले तो मेरे को आपके लिए जबरदस्त ताली बजानी पड़ेगी। वंडरफुल यार अर्पण, वेरी गुड। हाँ तो बढ़िया, देखो इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। चलो, मेरे पास अभी हाल में आपका ये डेटा मेरे सामने नहीं है, लेकिन मुझे कुछ बता सकते हो अर्पण कि इतना काम किया आपने, तो कोई डाउट ही नहीं है बहुत मेहनत हुई होगी, पर क्या बिल्कुल सर। जानकारी मिली आपको, आप क्या सीख पाए? सर बहुत कुछ सीखा सर। मैं लगभग 5-6 साल से हूँ मार्केट में, लेकिन मैंने बहुत लॉस ही किया है अब तक। जो है बहुत सारा लॉस किया है। अब जाके कुछ ओके, लग रहा है कि ठीक है। ट्रेडिंग करते थे, यही नहीं पता था कि कौन सी कंपनी क्या काम करती है, क्या वर्क करती है, क्या प्रॉफिट कर रही है। राइट, ओके ओके। पर जब आपने कंपनी एनालिसिस किया
तो आपको हम्म। कुछ सेक्टर में कुछ ऐसी अलग अच्छी कंपनियां मिली कि जो लगा कि नहीं यार, मैं बेकार में दूसरी कंपनी के पीछे पड़ा हूँ, मुझे ये कंपनी पे फोकस करना चाहिए, हाँ सर, ऐसा लगा, कोई क्यों भी नहीं लगा। सेक्टर? हाँ सर, सब ओके। जो है, जो प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं वो जो लगा मुझे कि इनमें काम करना चाहिए। लेकिन सर एक डाउट चल रहा था अभी मेरे माइंड में कि सर यस। मार्केट अभी ऊपर जा रहा है तो अभी इन्वेस्टमेंट किया जाए या फिर रुका जाए, क्योंकि सर मैं 2-3 बार कर चुका हूँ, मार्केट नीचे आ जाता है, वॉलेटाइल है, तो लॉस में वो कन्वर्ट हो जाता है, तो अभी होल्ड करूं या फिर बराबर। क्या करना राइट चाहिए। अर्पण, हम्म। ये क्वेश्चन को होल्ड करो एक हफ्ता और, क्योंकि नेक्स्ट जी। जो चैप्टर है वो इसी पे है हम्म। कि हमें कब बाय करना है। बराबर। पर एक चीज नहीं याद सर, रखो अर्पण, जैसे ऊपर जा रहा था हाँ, उसके लिए, जैसे कोई मार्केट अभी दिक्कत ऊपर नहीं, जा रहा है। अच्छा अच्छा। ये तो हमेशा ऊपर नीचे चलता जाएगा, पूरी जिंदगी ऐसा ही रहने वाला है। राइट। ओके कभी भी सर। वेन एवर हम्म। यू आर बाइंग, आप जी। तैयार रहो, आपका शेयर 50% टूटने वाला है। ऐसा मत समझो ओके। कि मैंने बाय किया और ये टूटा, क्योंकि इसकी आदत ही है, ऊपर नीचे चलता जाएगा। आप लोगे फिर वो टूटेगा भी, आप बेचोगे वो चलेगा भी, क्योंकि ये तो उसकी हैबिट है। तो उसको उसकी हैबिट से हम झगड़ा नहीं करेंगे, उसको बोलेंगे भाई तू तेरे हिसाब से ही चल, मैं मेरी जी हैबिट सर। सुधारूंगा। तो नेक्स्ट वीक जो हम काम करेंगे उसके हिसाब से जी। आपको कब लेना है वो सारी चीज पता चल जाएगी। राइट। एक नियम रखो, बाय ड्यूरिंग फॉल, अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैली। जब भी रैली ओ, आता है मत खरीदो, जब भी टूटता है किसी को मत पूछो, माल लेते जाओ खाली। क्या लोगे? आपने जो ये सब अलग अलग सेक्टर में काम किया है, ग्रोइंग जी। इंडस्ट्री में से जो टॉप क्वालिटी कंपनीज है, आपने कभी भी हम्म। कोई सेक्टर पे काम किया, एक दो कंपनी अच्छी लगी होगी, खाली वो कंपनी में निवेश करो, बाकी 80% कंपनी को जाने दो। राइट। ओके ओके। जी सर, राइट। और अर्पण में आपसे वापस बाद में बात करूंगा आपकी शीट ओपन करने के बाद। बराबर है। ओके बढ़िया काम ओके अर्पण, वेरी गुड। ओके ओके, थैंक यू सर। या ब्रिजेश चौकसी जी, ब्रिजेश भाई आर यू ऑनलाइन राइट नाउ? लेट मी चेक ब्रिजेश भाई। ओके, मेरे ख्याल से ब्रिजेश भाई इज नॉट देयर ऑनलाइन। श्रीनिवास जी, yes, Srinivas ji, you are online. Hello and welcome. How are you? Fine, sir. Okay, so which sector you have worked on? Sir, cars and utility vehicles. Okay, And let me open this sector. So Srinivas ji, what was the learning for you while you have worked on these cars and utilities and I think these internet software companies, right? yes, sir. So I have Right, opened sir. both the sector. Tell me. Yes, sir. Sir, main problem which I got was to judge which company is the first one and the second one which company. Just now you clear the doubt, but still 100% clarity I did not get that. Okay, okay. Preparatory-wise, how to get the first company and second company, because here M&M and Maruti are both good companies. M&M is doing sales more and net profit margin is Maruti more, and ICR Right, both are. right. Okay. Yes, sir. Let me change one thing. See, whenever you approach towards anybody's spreadsheet, what we should do first thing, Srinivasji, just convert this data, sort it as per sales. So what I will do? Sort as per sales. So Okay. whenever you are looking to any industry, see sales wise, right? Okay. Right. So sales wise, your idea is clear that Mahindra and Mahindra is top company in this whole sector. Yes, sir. Maruti and Mahindra, these both are doing business. These both are in this industry. Why to do sales? But it is Yes, clear sir. that Mahindra and Mahindra are doing top sales of 1 lakh crore. There are very few companies in India who are able to do 1 lakh crore turnover, and Mahindra is among one of these companies. Okay. Right now, Right, sir.
we know that we should focus on these two companies. We can focus because these two companies are doing good business. Now come to directly to margin, right? So let us see which company is able to have better margin. Which one, Srinivasji? Maruti, sir. Maruti. Yeah. So the margin of Maruti are better than Mahindra and Mahindra. My idea is clear, but still there is no big differences. 6 and 7% is almost equal. है ना? Yes, sir. श्रीनिवास जी, ऐसा नहीं है कि there is huge difference. One company is having 15% and one is having only 5% margin. So they Yes, are sir. Both. having equal margin. Yes, Still sir. okay, I think that Maruti is having good margin. Now come to ICR. That also So it is. ICR, no, I have one doubt here. Mahindra and Mahindra's ICR could not be 72. डेटा में प्रॉब्लम तो नहीं है श्रीनिवास जी? I No, think sir. Mahindra ICR should be lesser because they are having debt. Okay. Let me check it in your data. Okay, see here there is a problem. See, you can see here. You have considered total income of 55,000 crore and This sales consolidated. expenditure of 47,000 crore. है ना? Yes, So sir. there is some Yes. problem. Kindly That convert is it to consolidated. for the ICR. That is the है ना? difference. Yes, sir. So see, Here I have. actually Mahindra and Mahindra, is having high debt, right? They Okay. are good player. They are doing business very well, but still debt is there. While in Maruti there is a very low debt, right? Okay. Right, sir. You can be comfortable with Maruti. We are considering better margin and better in ICR. You can go with M&M also, but M&M debt is there. So do not buy directly 5%. What we can do? We can buy little bit less quantity, right? Right, sir. 2%, 3% should be comfortable here. Okay. Okay, sir. So which was another sector? Internet and software. Yes, sir. That Okay. actually my daughter did. Okay, your daughter have done so very good. Huh? Right now she is online. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good, Shivani. Wonderful work. Thank you, sir. What highlight you will give on this sector? आपको क्या अच्छा मिला और क्या ऐसा लगा कि वो these are good things on this sector, internet software? Yes, बताइए मैडम. Sir, as per NPM, LTTS is a good company, Yes. and even one second, Hmm. Madam, Marji first Soft. what we will see? First, before NPM, what we will see? Sales, sir. Absolutely, बहुत बढ़िया. So, as per sales and profit, what do you think? Where we should focus? Sir, as per sales, we should focus on LTTS and Infibeam. Yeah, the same That's applies right. for PAT also, profit after tax. Right. Good. So, further when you are moving further, then we will move to this net profit margin. Right? So, if this your Microsoft name, some companies having 22% margin, it's Yes, sir. all right. We are not going to see his margin because he's not doing at all business, right? So forget this margin. Yeah. What we will consider on here, LTTS is having better margin, right? Yes. And what about their debt? ICR? Sir, it is low debt. It does not have debt. Low debt. High debt. Yeah. Sorry, high. See, correct. They are having a very low debt. So we can say at least they are debt-free company, right? So Yeah. we are feeling comfortable in LTTS. Sales-wise, margin-wise, debt-wise, I don't think that if we will invest in LTTS,
LTTS could start making losses. ऐसा नहीं होगा बेटा, बराबर है? Yes, अगर sir. खराब समय भी आया आने वाले टाइम में, economy is not good, then also we can expect that LTTS can perform in bad time also, right? Yes, sir. Just What like about Corona. Yeah, yes, in this Corona also. In fact, Corona will help company grow like LTTS, right? Okay. And what about ROE? One second. Mhm. Sir, ROE also LTTS is only better. So here, our idea is a high clear. Keep all those investors who have invested in these all companies. Even today, they are not making profit. So why should we focus on these all companies when their stakeholder, 10-year-old investor are not making profit? Here is the company like LTTS, whose promoter are making 40 times profit than what was invested, right? Yes, See, sir. L&T's promoter, they have invested only 21 crore and they are making 800 crore profit every year. This is called as wealth, right? Yes, sir. So, Shivani, 5-6 months from now, Yes, you sir. will get some tips about Magrisoft or JSTL. What you will do? In TV, somebody will say, invest in Magrisoft. You will create wealth. What will be your response then? Sir, at that time also it will not be a good company as LTTS. Right. जैसे टाइम बदलता है ना, 5 years from now, 10 years from now, performer will be performer and underperformer will be underperformer. मैंने नहीं देखा है कि एकदम घटिया कंपनी को अचानक बढ़िया हो गई, ऐसा नहीं होता है, राइट? सो योर चॉइस इज एक्सट्रीमली गुड. LTTS you should focus here, बराबर ना? Yes, sir. Okay, so good work. Your 90% companies are bifurcated. Very good. Okay. And Srinivas ji, Hello. yeah, Sir, Srinivas actually ji, in this sector, you and your daughter, you both are doing very good work, right? You should yes, sir. follow the same procedures in all other sectors. Yes, sir. In this, sir, one month thing in this sector, only LTTS is doing the good work. Actually, all other companies are no second